आप सभी का सादर अभिनंदन। ओके, हाउ मेनी ऑफ अस डोंट अंडरस्टैंड इवन अ बिट ऑफ इंग्लिश हियर? आई मीन हिंदी। एक शब्द भी हिंदी की समझ में नहीं आती। कितने लोग होंगे? सब लोगों को समझ में आती है। आई एम सेफ नाउ एंड डोंट आस्क मी क्वेश्चंस. You know, I found funny questions. Okay, before I start, I tell you, just come out of your shell. You are a grower or farmer. I don't understand the difference between a grower or farmer, or chemical, non-chemical, and all that polyhouse. सब सारे house से बाहर आ जाओ. Just become the normal person. You know, I found few questions funny. I mean, don't take it personally again. कोई पर एकड़ यील्ड बता रहा है तो बोलते एक पौधे में कितना आता है. कोई एक पौधे का बता रहा है तो पूछ रहे पर एकड़ में कितना आता है. You know, I find it confusing. I mean, just funny this thing. So, did it make sense to you? Yesterday, I was just observing whatever we do from the morning to evening, attending the seminars and sessions, going to farm. The water is the integral part of life for the Mother Earth. I mean, it's no more mother anyway. It's a utility for us now. It's Earth. We are here for 70, 80 years. We just spoil it to the core, get lost again in the earth. It was Mother Earth few years back. Maybe the older generation, the previous generation will accept that. It's no more mother. I think so. I mean, I see it that way. So, when it comes to water, let me tell you, like जो मैं बोलता हूँ ना कि कुत्तों को धोते हैं, गाड़ियों को धोते हैं, डॉक्टर को कहना पड़ता है your body is getting dehydrated. Drink little more water. You agree with that? तो अभी मैं देख रहा था जब हम चाय के बाद दूसरे सेशन के लिए बैठे तो नए बॉटल्स आए और पुराने बॉटल्स उठा लिए गए. उसमें से पानी था, आधा था नहीं तो क्वार्टर था. एंड दैट इज़ आई डोंट थिंक इट्स लेस देन 21 रुपीज़ ए लीटर. हम यहाँ जब बिजनेस की बात कर रहे थे तो पर प्लांट वी डू द कॉस्टिंग लाइक 20 पैसा 40 पैसा समथिंग. नो इजंट इट? आई फाउंड इट 21 पैसा पर ml. 10 साल पहले ख़रीदने की बात होती थी तो हंसते थे हम कि पानी खरीद के पीता है. आज फ्री में लेते हैं तो हंसता है, हंसी आती है. यस और नो? एंड नो मैटर व्हाट टेक्नोलॉजी यू मेक, आई एम श्योर एट लीस्ट माई जनरेशन विल नॉट सी दैट ईटेबल्स आर गेटिंग डाउनलोडेड फ्रॉम यूट्यूब. अगले जनरेशन का पता नहीं. वो लोग तो 99% 100% स्कोर कर रहे हैं. मे बी दे विल गेट, आई डोंट नो. बट अभी तक का पता नहीं. पानी भोजन ये सब यूट्यूब से नहीं आएगा. पुराने मोबाइल का नाश्ता नहीं कर सकते. और खाना है तो उगाना पड़ेगा. एंड दे सेड यस बट नो. वो क्वेश्चंस आते हैं ना. द स्टूपिड इंटेलेक्चुअल माइंड विल क्वेश्चन एवरीथिंग व्हाट इज गुड. दैट टू इफ इट इज इंडियन वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस. भारत में भारतीयता की बात करें तो बड़ी परेशानी होती है. Another controversy university I was there and I just talked about cows and cows and cows and some little bit Vedas. The reference was given by American scientist or blogger, I don't know. तो उनका ये दिया तो बाद में the dean was telling me, you know, this place you can't talk about cows and Vedas. Students will come and hit you. क्या हो गया? ये तो भारत की चीज़ है. No, we can't talk about cows. Then I said, भारत अजीब देश है. भारत के लोग और भी अजीब हैं. कुत्तों की बात करो, गधों की बात करो, नो डिबेट. बट ओनली ऑन द काउज वी डिबेट वेदर आई विल ईट और वेदर आई विल नॉट ईट. वाई देर इज ए बैन एंड वाई देर इज नॉट ए बैन, ओनली अबाउट काउज. एंड व्हेन आई डिग लिटिल मोर अबाउट द काउज in our Kashyapa Rahasya and Parashar Rahasya, Krishi Rahasya, I found that nowhere in that full text, whatever is available now, they have mentioned कि बिना गाय का पानी और बिना पानी का गाय. It's always there, both things. But for a scientific, so-called scientific mind, भारत की चीज़ को हम दो ही चीज़ में तोड़ते हैं. What is the scientific evidence? These two words, scientific and evidence. भारत की हज़ारों 10,000 साल का जो परंपरा है उसको हम गोली मार देते हैं. कौन सा वो scientific evidence which is just 200 years old? I'm sorry. I'm not here to offend anyone. Science is very good, but what I believe, what Gurudev has taught me, that deepen your root and broaden your vision. किसी पे आप जड़ की बात सब लोग कर रहे थे ना. कोई पौधा होता है तो उसका जड़ के लिए इतना 45 mm चाहिए, मिट्टी चाहिए. अरे जड़ की बात करते हो तभी तो फल की बात करते हो. हमारे लिए जड़ क्या है? डीपन योर रूट, ब्रॉडन योर विजन. अगर अपनी संस्कृति, अपने देश की बात को छोड़ के हम अमेरिका को पकड़ने जाएंगे तो अमेरिका जो जाएगा बेटा लौट के नहीं आएगा, उधर ही रह जाएगा और आप ओल्ड एज होम में जाएंगे, है ना. जब अपनी संस्कृति, और चाणक्य ने कहा है कहीं पर कि व्यक्ति की रक्षा तभी हो सकती है जब परिवार सुरक्षित हो. समझ रहे हैं आप?
Individual can be safe only when the family is safe, and family will be safe only when the society is safe. So see the growing importance of society, and a society and dharma and sanskriti can be safe only when the nation is safe. जब राष्ट्र सुरक्षित है तभी संस्कृति सुरक्षित है. लेकिन अब who cares? देश दुनिया भाड़ में जाए. आई शुड हैव माई हेल्थ इंश्योरेंस, आई शुड हैव माई जॉब, माई बच्चा इज़ इन ए गुड इंग्लिश स्कूल. वो घर में आके भी ट्विंकल ट्विंकल करता है, वो 1 2 3 4 नहीं बोलता. यू नो, वो IIT करके अमेरिका जाए. या गधा हो गया तो इंडिया में क्या करेगा तू? उनका बेटा तो वहाँ चला गया, उनका बेटा तू जाना. और बूढ़े जब हो गए तो बस लोगों को सुनाते, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, मैं तो ऐसा. हाँ कि ना, सत्य है कि नहीं है? तो अब वो यूनिवर्सिटी में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आई मीन इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल वन. वहाँ जाके बोलते हैं गाय. मैं बोला यार तो कुत्तों की बात कर पहले आप बोलना था मुझे, आपने बुलाया मुझे. एंड यू नो दैट, यू नो, आई एम अ फार्मर विथ फेसबुक. I have the corporate experience of 10 years, but that is deleted part of my life. I just want to delete it. I was in sun, now I'm in shade for 4-5 years. I grow food and I find a big difference between money and food. मैं लोगों को बोलता हूँ कि I'm here to tell you that the link between the food and money is getting weakened now. कमज़ोर पड़ रहा है. भोजन से, पैसे से food poisoning आती है. आता है कि नहीं आता? We are the, you know, सेम ब्रीडर कम्युनिटी, आई मीन ग्रोअर कम्युनिटी, फार्मर्स कम्युनिटी. इतना केमिकल की हम बात करते हैं. एंड एवरी अदर डे द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग, राइट? है ना? कितना भी कवर लगा लो, वो डोंट वी हैव मोर प्रॉब्लम्स? आई मेट अ ग्रोअर, आई मीन फार्मर फ्रॉम छत्तीसगढ़ 2 साल पहले. ही इज एक्सपोर्टर. आई नो प्रॉब्लम विथ अस इज वी आर, यू नो, सो वेरी ashamed of our own culture, our own language. ना अपनी हम भाषा बात में. उस आदमी से मिला, अंग्रेजी उसको आती नहीं और हिंदी में बोलता नहीं. छत्तीसगढ़ से आया था, 2 लैपटॉप लेके, 2-3 मोबाइल, यहाँ से वहाँ से सब. और व्हाट यू ग्रो, व्हाट यू पुट. मैं बोला भाई कहाँ से हो आप? आई एम छत्तीसगढ़. मैं बोला यार तू ही छत्तीसगढ़ तो हिंदी में बोलना. तो बोला नहीं, आई कम टू सी फार्म. बोला अच्छा ठीक है, तू हिंदी बात कर, नो, मैं मारूंगा नहीं यहाँ पर. तो अंग्रेजी बोलना. आश्रम में 160 देश के लोग आते, सब अपनी भाषा में बात करते. मंगोलियन को तो कुछ भी नहीं आता, फिर भी गुरुजी उनसे बात करते हैं. तू बोल अपनी भाषा. तो बोलता है यार मुझे फार्म दिखा दो. घुमाया तो हमारे पास 400 गाय हैं, देशी गाय. मेरे लिए गाय माने देशी होता है. अगर आपको नहीं पता हो कि गाय में क्या क्या ब्रीड होता है तो, है ना, देशी इज़ द गाय, अदर इज़ नॉट द गाय. तो उसको मैंने दिखाया तो बोला ये गोबर डालता हूँ. गोबर से खेती करते हो? बोला क्या हो गया? नहीं मैंने तो सुना था गोबर डालोगे तो गोबर ही उगेगा. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस हियर आल्सो आर बिलीवर इन दैट. बट उसने मुझे कहा, बोला तू क्या करता है? मैं तो केमिकल डालता हूँ जी, पेस्टिसाइड डालता हूँ. और 10-20 उसने सुना दी जिसका मुझे स्पेलिंग भी नहीं पता. आई एम श्योर ही ऑल्सो वोंट नो द, यू नो, स्पेलिंग्स. तो बोला अभी क्या करना है, क्या उगाते हो? आई डू एक्सपोर्ट, बट यू नो द पपाया व्हाट आई ग्रो आई डोंट सेंड इट होम. आई टेल यू आई रियली फेल्ट लाइक स्लैपिंग दैट फेलो. मैं बोला तेरा बेटा बेटा है और मेरा बेटा बेटा नहीं है. आप समझ रहे हैं? मैं बोला कुछ तो खरीदता होगा तो बाजार से. बोला हाँ कुछ तो खरीद. मतलब बात बराबर हो गई ना? हुआ कि नहीं हुआ? These kind of people are in farming and we talk about good health for our kids. Do we have any right? Do everything you do. The money is, it matters a lot. But मुझे लगता है पैसे से बहुत कुछ आता है, सब कुछ नहीं आता. और वो बहुत कुछ और सब कुछ के बीच में भोजन अटक जाता है जी, पानी अटक जाता है. शुद्ध दूध, जिसको साइंस या अंग्रेज A2 मिल्क बोलते हैं. पहले हम दूध बोलते थे, अब पूछते हैं A2 मिल्क, इसमें फैट कितना है, ये कितना है, वो कितना है, पूछते हैं ना. यू नो, सब कुछ वो पैरामीटर में सेट होना चाहिए. और वो दूध पीने से डिसेंट्री हो जाते, कहते हैं खराब दूध. अरे वो तूने पिया ही नहीं कभी वो दूध. अच्छी चीज़ पीने से पेट खराब हो जाता है आजकल, है ना. तो उसको वो बोला अभी क्या करूँ मैं? बोला क्या, कौन सी फार्मिंग कर? तो बोला इनऑर्गेनिक. मैं बोला इन हटा दो, जो बचा वो ऑर्गेनिक है. और तुमको पता है, खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग यू आर आस्किंग मी. आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, आई कांट, यू नो, गिव ऑल द आंसर्स व्हाट यू हैव. यू नो द आंसर. सो सी दैट द पपाया व्हाट यू ग्रो यू ऑल्सो कंज्यूम एंड हैप्पीली यू गिव. नहीं तो तेरा धन भी गया, धर्म भी गया. मैं बता तूने कमाया कितना? बोला पिछले 1.5 साल में 15 लाख का लॉस हुआ. बोला धन भी गया, धर्म भी गया. गया कि नहीं गया? 100 की जगह 80 कमाता, लेकिन तुम्हारा पपीता खा के किसी को कैंसर नहीं होता, किसी का खून बन जाता. कितना आशीर्वाद मिलता. अन्नदाता बोलते हैं किसान को.
और गुरुजी ये बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं, एटलीस्ट एक बार तो रोज़ बोलते हैं गुरुजी कि जब भी खाने बैठते हो तो 3 बार अन्नदाता सुखी भव बोलना। द ग्रोअर शुड बी हैप्पी, द फार्मर जो हल चला रहा है, अब तो ट्रैक्टर चलाते हैं, द वन विच पायलट्स द फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्म टू द शॉप, वो भी खुश होना चाहिए। और जो आपके यहाँ कुक करके दिया, आपकी बहन, आपकी माँ, बीवी, वो भी खुश होनी चाहिए, तभी वो अन्न से खून बनेगा और यहाँ शांति होगी। वो तीनों अगर खुश नहीं है तो इधर शांति नहीं होगी, पैसा भले होगा। Someone posted on Facebook, if you feel that ecology is less important than economy, hold your breath as you count the money। आप समझ रहे हो। और मैं वहाँ BHU में था तो एक पंजाब के एक एक्टिविस्ट मिले। यू मस्ट बी नोइंग द पंजाब इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेस, आई मीन ज़मीन की तरह से, कि उतनी ज़मीन में उतना भोजन दुनिया में कहीं नहीं उगता था 10-15 साल पहले। एंड दैट टाइम पंजाब मतलब पंज माने 5, आप माने नदी, वहाँ 5 नदियाँ थी और द वाटर लेवल वाज जस्ट 15 to 20 feet। इन 2006 और 7 आई हैड बीन टू पटियाला से थोड़ा बाहर एक गांव में था, वहाँ तो एकदम मतलब बोरवेल तो ऊपर ही है, 15-20 फीट में आ जाता था पानी, 24 घंटे बिजली, एंड दे हैव टू वाटर एग्जैक्टली द सेम डे। जैसे गेहूं के फसल में 5 पानी देना है तो एकदम डेट फिक्स है, उस दिन देना ही है। 24 घंटे बिजली थी, फिर भी सबके पास अपना जनरेटर था कि अगर उस दिन कट गया तो। और ऐसा करते करते अभी डार्क जोन क्रिएट हो गए पंजाब में, पता है आपको? डार्क जोन मीन्स व्हाट? कितना भी खोदो पानी नहीं है, 2000 फीट इज द नॉर्मल। और उन्होंने बोला 5 गांव का एक समूह है, पंचायत है, उसके बाहर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाहर लिखा है द विलेजेस आर ऑन सेल। बोला इफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया and UK, these 3 countries, UK, Australia and Canada, if they open their desk, open their visa office for Punjabis, in 2 days Punjab will be खाली। ये है हमारा विकास, ये है हमारा विकास। और अब वहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने सुना कि 5-7 फीट की मिट्टी को हटा देते हैं, वहाँ सीमेंट डालते हैं एक लेयर का, उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल के चावल उगाते हैं, रेपिंग द मदर अर्थ। और आयुर्वेद को आप पढ़ो तो उसमें कहता है, कोई भी आपको वैद्य बताएगा कि बेटा जहाँ रहते हो तुम, वहाँ से 100 किलोमीटर की रेडियस में जो फूड उगता है ना सीजन वाइज, वो तुम्हारे लिए लाभदायक होगा, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य बनाना अलग चीज़ है, बीमारी ठीक होना अलग चीज़ है कि नहीं? मेडिसिन इज सिक केयर, इट्स नॉट हेल्थ केयर। कीप योर बेसिक्स राइट। पहलवान को दवा की जरूरत नहीं होती, स्वास्थ्य लाभ आयुर्वेद से होता है। क्रोसिन खाने से तो सतत पता नहीं बुखार ठीक होता है और फिर 2 दिन के बाद फिर वापस आ जाता है। आप सहमत हैं हमारी बात से, है ना? 100 किलोमीटर पे जितना उगता है ना, वही तुम्हारे लिए खाने के लिए रहेगा। और आज शिलोंग में अगर उगता है, पता नहीं, अरुणाचल में एप्पल उगता है तो मुझे भी एप्पल उगाना है बेंगलोर में। टेल मी व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई शुड डू टू डू दैट। वोंट यू फेल? बेटा आपका इंजीनियर बनना चाहता है, उसको आप कुछ तो बना रहे हैं जबरदस्ती, वो पागल होगा नहीं। ऐसे भी 16% बच्चे भारत के स्ट्रेस्ड हैं, दे कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स प्रेशर। 98.5, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? द कट ऑफ इज 99%, व्हाट विल आई डू नाउ? हैव यू हर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ डांट फटकार? 5 नंबर कम आया, वो बच्चा सुसाइड का। 16% बच्चे हमारे स्ट्रेस्ड हैं। एंड व्हाई इज दिस ऑल सर्कस? टू मेक मनी। बच्चा खुश नहीं है, स्वस्थ नहीं है, वो नहीं बन पा रहा जो हम बनना चाहते हैं, तो व्हाट द यूज? व्हाट्स द यूज? और वही मैं जब बोलता हूँ लोगों को कि जब टंग जाओगे ना, another 40-50 years most of us will not be here, let's accept that truth, isn't it? जब फोटो में जाएंगे, पता नहीं माला, hope they will put माला तो जरूर बोलेंगे। I tell you, I have seen people, few of my friends, they have dogs at home, but their parents are in old age homes. It's the reality. The old age home is becoming a big business, big business. मैं 2012 से 14 तक ढोलक लेके सत्संग किया हूँ सारे ओल्ड एज होम्स में बेंगलोर में, तब जितने थे, है ना? That was the ढोलक was the only thing which got me connected to spirituality and art of living and all that. Now I'm a full timer there. और वहाँ मैं गया, 5 मिनट और, one of the old age home in JP नगर somewhere, एक हमने सत्संग किया और वहाँ हम प्रसाद बांटने गए, तो आई फाउंड दैट वन यंग लेडी, आई मीन जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, फिट एंड फाइन, अ विडो, वाज टॉकिंग टू अ गाय। तो मैं सोचा डॉक्टर आया होगा विजिट के लिए, वो लड़का उससे ऐसे ही बात कर रहा था, तबीयत ठीक है ना, सर दर्द ठीक है, ತೊಂದರೆ ಏನಂತೆ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ, ಇದು ಅದೆಲ್ಲ। तो मैं सोचा चलो लेट्स वेट
ख़त्म हुआ, द मोमेंट द गाय कम्स आउट, वो माताजी एकदम लाइक अ फिश, सी स्टार्टेड रोलिंग ऑन हर बेड। तो मैं गया दौड़ के बोला आपको सर दर्द है, बुखार है, तो बोलना था ना उसको। नहीं मगा आओ नो, वो मेरा बेटा था। कहाँ रहता है? बोला 3 किलोमीटर दूर यहाँ जेपी नगर में रहता है, एंड ही इज़ द ओनली किड ऑफ माइन, and last year I got him married just because that girl doesn't want me to stay with him. I am in this old age home. If this is the thing we are here to give it, to pass it on to our kids, I tell you, जीते जी हम वो देख लेंगे, बहुत गड़बड़ होगा। और ये सारा कुछ शुरू होता है भोजन से और पानी से। जैसा अन्न वैसा मन, you become what you eat, isn't it? Huh? You become what you eat. So don't you think it's our responsibility to at least these 3 things, air, water and food, to keep it ultra clean? Maybe sometime using the technology, but I don't think technology has done anything good to the nature. अमेरिकन एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट एक ब्लॉगर पता नहीं, उसने लिखा था कि even if the global warming is balanced, or anything for that matter which gives you headache in the world like unemployment, चोरी डकैती, ये वो सब कुछ सेटल्ड, जितना टेम्परेचर आपको चाहिए वो पॉली हाउस के अंदर बाहर सब रहेगा, वैसा हो जाए, still we can't take more than 60 crops from this earth now. 60. And what he says, he gives the reference of Vedas. He says, a handful of soil, if you husband it, I'm just reading his words, don't catch me on technical terms, I'm a non-technical guy. If you husband this, if you love this, it will give you food, shelter, fuel and everything. You spoil it, it will die, taking the humanity along. Rig Veda versus so and so and so. That American, very young fellow, hardly 32 years old guy. I forgot his blog name and his name also. Maybe in my mobile will be there. And then he says that all the agriculture inventions in the world happen just to wreck the topsoil. Now it's no more a soil, it's a dust or dirt. मिट्टी और धूल में फर्क होता है, पता है आपको? मिट्टी और धूल में फर्क होता है। बोला कि इतना रेक किया, and the weight bearing capacity of a fertile land is 40-50 kg, 30 to 50 kg. That is what he said. I don't know, really I don't know, because मिट्टी को मैं तो जोतता ही नहीं, मैं तो पत्थर पे उगाता हूँ बिना खुदाई किए हुए। तो वो बोलता है 30 to 50 kg. Then just it struck my mind कि बैल से खेती करते थे, how scientific. एक बैल का वजन कितना होगा? 150-200 किलो, divided it on 4 foot, कितना हुआ? How scientific. लेकिन हम दादाजी को तुम्हारे ये लोग तो छोड़ो यार, ये ऐसे ही कुछ तो बोलते रहते हैं आजकल। कौन, यू आर ए पढ़ा लिखा पर्सन, कम ऑन मैन, यू आर इन 20th और 21st सेंचुरी, स्टूपिड, इजंट इट? नाउ वी हैव ट्रैक्टर्स। मेरे दादाजी उसको ब्रह्म राक्षस बोलते थे। जब पहला ट्रैक्टर आया बोले कि देखना अब तो जब तुम मेरे एज में आओगे, पता नहीं उनके एज में मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, वो बोले कि यू विल नॉट गेट ऑक्शंस, बैल नहीं दिखेंगे, इसकी वजह से बैल कट जाएंगे। ही नेवर वेंट टू स्कूल्स बट ही हैड दैट फोरसाइट। एंड आई रियली टेल यू, बिहार से मैं हूँ, भैया को बता भी रहा था, 6 साल लगे मुझे एक देशी गाय खरीदने में, 6 साल लग गए। वो भी पता नहीं प्योर है कि नहीं है, 6 साल लग गए मुझे देशी गाय। बैल की तो छोड़ो, भूल ही जाओ। घर घर में ट्रैक्टर आ गए, बच्चे सब शहर आ गए, विलेज टू सिटी, सिटी टू मेट्रो, मेट्रो टू ऑन साइट वाला से लेट्स गो टू मार्स, देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन प्लैनेट अर्थ। और जो गया वो वापस नहीं आता। 10 साल अगर कोई रह गया यूएस में तो आता है क्या वापस? आप बताओ, नहीं आता ना। और अगर बैंगलोर में अटक गए बिहार से या किसी स्टेट से दिल्ली में अटक गए तो बोले दादाजी पिताजी क्या कर रहे हो गांव में? मैं थोड़ी खेत वेत बेचो ना, मैं तो एक मैच बॉक्स खरीद लिया इधर, 50 लाख का 1 करोड़ का ले लिया, आई एम हियर। और उसका बेटा बोलता है लेट्स गो टू ग्रैंडपाज प्लेस, बोलता है ना, जब उसकी छुट्टियां होती है। अब उसका घर नहीं है, उसके दादाजी का घर है। रिलेशन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? इट ऑल स्टार्ट्स अगेन, आई टेल यू, आई रिपीट, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द फूड. And when you say food, water, you have to think. Or forgive me, we have been talking about so much of plastic. Let's talk about the disposal also. उसको कैसे dispose करेंगे? Because in this small city, compared to other metros, 2,500 ton of kitchen waste is getting generated every day. 2,500. ये 2012 का डेटा है। उसके बाद मिला नहीं मुझे, गूगल गुरु ने बताया नहीं मुझे कि इसके बाद का क्या डेटा है। Almost 6 million ton a day in this country. Any outskirts of any metro you go, नाक बंद करना पड़ता है, हमारा ही कचरा हमें बदबू देता है। 55% is the wet waste which can be decomposed. Can't we? And दुनिया, आप लोग सब बिजनेसमैन हो,
दुनिया का सबसे बड़े जो बिजनेस कंपनीज हैं वो जीएम है, मतलब गार्बेज मैनेजमेंट, इट्स नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड, गार्बेज मैनेजमेंट में इट्स ए बिग बिजनेस। और हम जो कंपोस्ट बनाते हैं आश्रम में, कलेक्टिंग ऑल द वेस्ट ऑफ द आश्रम कैंपस, ग्रीन एंड ड्राई, 30 रुपये किलो ले जाते हैं लोग जिनको गमले में उगाना है। और समवन सेड इट्स इंटरनेशनल वैल्यू इज 6 रुपीज़ ए किलो। तो पानी को कैसे बचाएंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो ना। दैट इन दैट वीडियो इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड 6 एकड़ के खेत में 76 बोरवेल, इट वाज 46 था, मैंने गलती से बोला। आई मेट दैट फार्मर इन द आश्रम, 46 बोली, जस्ट हाइट ऑफ हिज पेशेंस मैन। एंड कितना पैसा है उसके पास, कितना पैसा है उसके पास, 46 बोरवेल, कैन यू काउंट हाउ मच मनी ही वुड हैव पुट? मैं बोला अपने 10% के खेत में एक पॉन्ड बना दिया होता, एक तालाब बना होता, 2 साल में इतना पानी होता तो बेचता उससे, होता कि नहीं होता? लेकिन हम पता नहीं कहाँ उड़े जा रहे हैं यार, कहाँ उड़े जा रहे हैं हम। अपनी चीज को छोड़ के हमको लगता है बस विकास करना है, हम विकास करना है। आई रियली फाइंड इट स्टूपिड। आई नो आई एम रूड बट दिस इज व्हाट इट इज। जब लोग आके किसान मुझे पूछते हैं ना, ये जो गिर गाय है हमारे पास, 400 में ऑलमोस्ट 350 वी हैव गिर गाय, वो बड़ी बल्की होता है एकदम। दिस इज द सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। ब्राज़ील में तो 63 लीटर का रिकॉर्ड बनाया किसी ने, हमारे यहाँ 20 लीटर तक देती है। समझ रहे हैं आप? उसको आके पूछते हैं तो हंसू ना यमे अंता, ये गाय है कि भैंस है? कनकपुरा से फार्मर है, वो पूछ रहे हैं हमको ये गाय है कि भैंस है। और गाय बोलो तो बोलता है नाटी ना सीमे अंता। एक बूढ़ा आदमी 70-80 साल का हिंदी में पूछता है ये गाय बनती कहाँ है? डू यू हैव एनी आंसर? मैं बोला क्या करोगे जान के? नहीं मुझे 10,000 गाय खरीदने में। बोला तेरे औकात से बाहर की बात है। गुस्सा हो गए वो, बोले हाउ यू नो माई औकात? में बोला आई डोंट टॉक अबाउट मनी। तेरे पास इतना रिसोर्स नहीं होगा इनको खिलाने के लिए। 10 लोगों की फैमिली को चला नहीं सकते, उसमें बंटवारा कर लेते हो, बेटे को अलग, पिताजी को अलग, दादाजी को अलग, और तुम 10,000 गाय को खिलाने की बात करते हो। नहीं तो लोग पूछें ये देती कितना है? मैं बोला माइलेज पूछ रहे हो क्या? You know, we have the stupid habit of connecting everything with money. Everything with money. कुछ भी रहने दो बेटा, इंजीनियर क्या कमाएगा कितना? हाँ ना? अगर वो जन्मते ही जान लें कि ये कुछ नहीं करने वाला ना, ये is going to be, you know, he will get bold everywhere, तो हम कहीं पैसा खर्चा नहीं करेंगे उसके ऊपर। गाय को माता कहते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा में पंचगव्य बनाते हैं ना, उसको पंचामृत बोलते हैं ना। व्हाट इज दैट पंचामृत? जो गाय देती है वही 5 चीजें, कोई भैंस वाला नहीं डालती है, सुअर वाला नहीं डालते उसमें। और जब गाय देखते हैं तो पूछते हैं कि ये देती कितना है? आप समझ रहे हो? क्या करें? मैं बोला एक बच्चा भी है ना जो साइकिल देखता है तो उसको नहीं बोलते ये कार है कि साइकिल है। लेकिन गाय को भिंडी का पौधा नहीं पहचानते लोग, बोलते दिस तुलसी इज सो गुड लेट्स टेक ए फोटो। मैं बोला मैडम दिस इज भिंडी नॉट तुलसी। दिन में 3 बार खाते हो, उसका पौधा नहीं पहचानते। आप समझ रहे हो? एंड आई एवरी डे आई टेल यू, जैसे राजीव भाई ने बोला मैं परमाकल्चर हेड करता हूँ वहाँ पर, वी हैव ए मॉडल फार्म इन आश्रम, मे बी यू कैन कम एंड सी। इट वाज नॉट इन दैट गुड, यू नो दिस थिंग। सी जब ये आए थे गर्मी ज़्यादा थी, हमारे पास एक ही लड़का था। यू नो खेती में करने में तो शर्म आती है लोगों को यार, किसको चाहिए खेती? द मोस्ट डेफ फेलो विल डू द फार्मिंग। 300-400 रुपये पर डे मिल जाता है सिटी में, कौन जाए खेती करने के लिए? गाय हमारे पास है, दूध निकालने वाले से हमें स्ट्रगल होता रहता है। मैं निकालता हूँ रोज 20 गाय का दूध, नहीं मिलते लोग, नहीं मिलते लोग। पूछते मशीन लगा दो ना, कहाँ मशीन लगा दोगे? तो फिर मिल्क मशीन हो गई, तो जर्सी ले आओ 30 लीटर रोज का देगा। आप समझ रहे हो? और कर्नाटक में बताऊं पानी का, जस्ट 2 मिनट्स एंड आई एम डन। कर्नाटक में पानी की हालत, इफ यू डोंट नो, आई मेट अ फार्मर, ही केम टू विजिट में परमाकल्चर साइट ऑन 2013 और 14 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन। तो उन्होंने पूछा हमारी ग्रीनरी जब देखी, वी हैव द लैंड इज हैविंग 90% ऑफ स्टोन्स एंड 40 डिग्री ऑफ स्लोप। 15 साल से वहाँ कुछ नहीं हुआ और हमने बिना बोरवेल डाले हुए, डाल नहीं सकते वहाँ पर, 3000 से भी ज़्यादा फीट जाना पड़ेगा। बनशंकरी में भी 3000 फीट चला गया 2015 में ही, इफ़ यू डोंट नो। वहाँ का बिल्डर आके मुझे बताया कि 3000 पे बोरवेल फेल हो गया, 3000 फीट पे तेल निकल जाएगा। नहीं तो और नीचे गए तो पताल में चले जाएगा, ओबामा हाथ हिलाएगा वहाँ से, इधर अमेरिका है, इधर पानी नहीं है। तो वो बोलता है बंदा, यू नो आई एम फ्रॉम कोलार एंड व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, आई मीन दैट मीन 30 years बैक, द कोलार में पानी था 15 फीट 20 फीट पे मिलता था। जब हम मिट्टी का दीवार बनाने के लिए गड्ढा खोदते थे तो कीचड़ निकलता था। एंड नाउ इन 40 years 100 times it has gone down. 30 to 3,000 feet is the development in Karnataka. और फॉर दैट मैटर एवरीवेयर इन इंडिया। मेरा घर से 2 किलोमीटर गंगा नदी है, 4 तालाब थे, चारों सूख गए। 98 में जब घर छोड़ा मैंने, जब बेंगलोर आया तो 20 फीट था, अभी 250 फीट हो गए। अभी भी जू नहीं रेंगती कान पे, लगता है अरे गंगा तो बाजू में है ना। 9.5 किलोमीटर इज द विड्थ ऑफ गंगा इन माई प्लेस, 9.5 किलोमीटर। लेकिन अभी ट्रैक्टर लेके इस पार से उस पार चले जाते हैं इन दिस टाइम।
बट इट डजंट स्केयर अस. हाउ लॉन्ग पर डे. मेरा कैलकुलेशन है कि 3 से 4 इंच पानी नीचे जा रहा है बेंगलोर का. 3 से 4 इंच पर डे पानी, वही जो 2-4 मिनट नहीं मिलता है तो ढूंढने लगते हैं हम. मैं उसी की बात कर रहा हूँ, पीने वाला पानी. और अब जब बात कर रहे थे बहुत सारे स्पीकर्स, ये पानी का क्वालिटी देखना, इतना बर्बाद किया हमने, अब हमने ही बर्बाद किया, उसकी क्वालिटी देखनी पड़ती है. बोरवेल से एक तो पानी आया कि नहीं, और आया तो कैसा आया, आप समझ रहे हैं. मिलियंस ऑफ लीटर ऑफ केमिकल एंड सीवेज गोज डाउन इन द अर्थ, और यहाँ पर जाता है, वहाँ जब बोरवेल डालते हैं तो हम वी एक्सपेक्ट अमृत टू कम आउट फ्रॉम दैट, है ना. प्रैक्टिकली नहीं चलेगा. तो वी आर द वन हु नो इज द मोर डेवलप्ड ब्रीड, जो 84 लाख योनि में सबसे ज़्यादा तो हम ही होशियार हैं. हम धरती पर रहें, बाकी मर जाए, वी डोंट केयर. तो ये इस थॉट प्रोसेस से बाहर आके थोड़ा नेचर को बचाने की अगर हम बात करें, पानी बच जाए जी, पानी बच जाए तभी पौधे बचेंगे, फूल बचेगा और हम भी बचेंगे. और हम इतना खेती करते हैं, थोड़ा बाउंड्री पे पेड़ लगा दो ना, है ना. मैं बोलता हूँ लोगों को एवरी डे, अगर 70-80 साल हम जिंदा हैं तो वी नीड 16 पेड़ का ऑक्सीजन, और टिश्यू पेपर भी तो चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए. तो 20 पेड़ पर हेड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ वी नीड, इजंट इट. पर हेड लगाते कितना है. अगर बेटे के बर्थडे पर अगर एक पेड़ लगा दिया तो यू थिंक यू विल कट इट. पेरेंट्स के एनिवर्सरी पे एक पेड़ लगाया तो कटेगा. भगवान ने पर्व त्योहार उत्साह मनाने के, फेस्टिवल मनाने के कितने अवसर दिए हैं आपको ज़िंदगी में. 10-20 पेड़ तो हम साल में लगा सकते हैं. डोंट टेल मी दैट वी आर दैट यूजलेस दैट वी डोंट गेट इवन हाफ एन आवर ए ईयर टू प्लांट ए ट्री. एंड टू सम अप आई टेल यू, टू नॉट टू प्लांट ए ट्री वी हैव एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज. बकरी खा जाएगी जी, पानी कौन देगा, पेड़ नहीं मिलता, ये शहर में लगाने कहाँ जगह है लगाने का. ऑल दिस स्टूपिड एक्सक्यूजेज वी हैव, बट टू प्लांट ए ट्री वी हैव ओनली वन एक्सक्यूज, कि जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस आसानी से हम जन्म से लेके मरने तक सांस लेते आ रहे हैं, उसी आसानी से हमारे बच्चे भी सांस लें. तो उसके लिए एक पेड़ लगा देना. यस और नो. देन वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. इकोलॉजी इज सेफ, देन ओनली अदर थिंग्स विल बी सेफ, ईजियर. किसी ने मुझे बोला कि 40 डिग्री बेंगलोर में अभी हुआ, 122 साल पहले भी 40 डिग्री हुआ था, सो नथिंग टू वरी. मैं बोला तब 40 डिग्री हुआ तो इतना पेड़ लगाया कि बेंगलोर को ग्रीन सिटी और एसी सिटी पता नहीं क्या क्या बोलते थे 10-15 साल पहले. अब अगर इसमें हो कि पिछले साल 32 डिग्री था, इस साल 40 डिग्री, 8 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस कहीं देखा धरती पर आपने एक साल में, इन ए ईयर. टेल मी. बेंगलोर में हुआ, जहाँ सब कुछ मस्त था, रोज बारिश होती थी. तो सी इफ यू कैन हेड this way even a little, at least we can educate our coming generation, start growing food at home. कोई खेती की बात करता है तो उसको हम थोड़ा सपोर्ट दें, भाई कर. तो गाय रखने की बात करता है. औंधिया इज ए डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, वहाँ पर से मैंने पहले सुना था जहाँ गाय, देसी गाय है, वहाँ पानी का लेवल मेंटेन होता है. पीपल डोंट that mind will not understand the logic. You dig into Vedas, you will understand. If at all you have interest, you will get the. औंधिया में पानी का प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ से एक बच्चा आया था, मैंने उसको पूछा यार तुम्हारे यहाँ महाराष्ट्र में क्या पानी का. बोला कि हमारे, बताए भैया हम गाय नहीं बेचते, हमारे यहाँ गाय मर जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, हम बेचते ही नहीं, और हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम है. मैं बोला यस, नाउ आई गेट द कन्फर्मेशन. गाय है तो पानी है, पानी है, आई मीन गाय नहीं तो पानी नहीं. झारखंड इज़ द एग्जाम्पल. अब पानी वहाँ नहीं है, गाय भी नहीं है. आप देख लीजिए, कैन वी डू समथिंग इन दिस डायरेक्शन. थैंक यू सो मच. जय गुरुदेव.